उन साहसी बच्चों का जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली के राजधानी में लेकिन भारत के अलग अलग कोने में उन्होंने अन्याय के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। और वो सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज इस आंदोलन के द्वारा छात्रों को जो समर्थन किया, हम सब की जो मूल प्रथम मांग थी उस मांग को आज डबल इंजन की भाजपा सरकार को मानना पड़ा। चाहे वो जितने भी आंसू गैस क्यों ना छोड़े, छर्री वाले गन का इस्तेमाल क्यों ना करे, हजारों की तादाद में युवाओं की टांग और हड्डी तोड़े, उसके पश्चात भी, इतना जुल्म होने के पश्चात भी हमारी भारत की जनता ने, विशेष रूप से जेन जी और युवक समाज ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई और इस सरकार के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। उसके लिए सभी को, सारे सामाजिक जो एक्टिविस्ट हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स, इस अलग अलग मंचों में, जंतर मंतर में नेतृत्व लेने वाले जो लीडरशिप, कांग्रेस दल के हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, ये हमारी एकता की ताकत का ये प्रमाण है। हमने संविधान पर विश्वास रखा, हमने भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों से प्रेरणा ली, महात्मा गांधी जी से हमने प्रेरणा ली और जैसे हमने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भेजा, वैसे ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार को हमने तोड़ा और जो प्रथम जो हमारा मांग कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, उस मांग को कबूल किया गया। हमारे और भी मांग है कि दिल्ली में जिस प्रकार से छर्री गन, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बैटन, इलेक्ट्रिक स्टिक, जो दहशत हमारे बच्चों पर वहाँ की दिल्ली पुलिस द्वारा और सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा की गई, उस दहशत के लिए इस सरकार को माफ़ी मांगना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यकर्ता में इस पूरे काम में विफल हुए, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये मांगे अभी भी हमारी पूरी नहीं हुई है। Dharmendra Pradhan, the Education Minister, he finally resigned. What's your take? And today you made a very big announcements also. See, it was regarding expanding of the Andolan, and that is what I spoke just a few hours ago. That you should now take this, you should create a new sub-centers. Delhi Jantar Mantri is a sub-center. The other sub-center should be the residence of those elected parliament members and Rajya Sabha members. The government has now, government has directed, or Mr. Pradhan has given it on his own, is a question mark. We do not know. Whether the Prime Minister has accepted the resignation or not, there is still a question mark. Secondly, the students are talking about the system also, improvement of the system. That system has not been addressed. That needs to be addressed, and I think so there are indications which are coming across that unless the government starts addressing the system, there are some hints I feel that the Andolan might not stop here with the resignation of Dharmendra Pradhan. See, why centralize education? And why centralize examination? Earlier, education was a state subject. Now you have brought it into concurrent list.
what we are now demanding is that NEET should be decentralized. It should be abolished. And state should be made responsible for the students' future, not the central government. So that is the direction I think so in which this movement will move ahead. Whom you give credit for this resignation? Yeah, it's a Andolan's credit that everybody joined in, and so it's not one person's credit, I would say, but it was a student's credit who joined everywhere on their own. Your take on this resignation? What government must have thought to ask for me? The Dharmendra Pradhan voluntarily resigned. See, the question was that this movement was expanding, and in the afternoon press conference, which I said that there should be sub-centers for this movement, and the sub-centers should be the residence of the elected members of parliament. Unless they speak for the people, if they don't speak, then the students should do dharna before their houses, so that they understand their responsibility. There are news which I have been hearing is that Dharmendra's resignation is not going to address the corruption within the system. So the system needs to be addressed. One. Second is those students who were lathi charge by the police, they need to be, action needs to be taken care on that. Lastly, I would say that why centralize education and examination? Earlier, education was a state subject. And during those periods, we didn't have any trouble. So the NEET should be abolished, and education should be decentralized, and state should be made responsible for the education. So now the movement should be like halted, stopped, or what would you? I don't see the movement stopping at this stage. Because there are voices which are saying that, yes, corruption issue was major issue, which they held Dharmendra Pradhan as responsible. But they said the system is also corrupt. So the corruption within the system needs to be addressed, and the corruption within the system can be addressed only by decentralization and abolition of NEET. So that I think so these two demands will come ahead. Okay. I see. सर उनका इस्तीफे को क्योंकि आप भी उनमें से हैं जो लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। देखिए, हम एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन मांग रहे थे, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से ही करप्शन शुरुआत हुआ था और पेपर लीक की बात वहाँ पर हुई थी। अब उनका रिजिग्नेशन उन्होंने दिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब तक प्राइम मिनिस्टर स्वीकारते नहीं, तब तक मैं समझता हूँ कि इशू ये जिंदा रहेगा। पार्लियामेंट इन सेशन होने की वजह से एनी अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्ट्री हैज टू बी मेड इन द हाउस इटसेल्फ। वो हाउस के बाहर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि सोमवार तक हम लोग को रुकना होगा कि या 3-3:30 बजे का समय जो दिया था, उस 3-3:30 बजे के समय में रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है करके अगर और प्रेसिडेंट को भेजा है, ये अगर न्यूज़ आती है तो शायद मेरे ख्याल से ये सरकार ने स्वीकार लिया। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात जो है, को जो विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ उसका क्या है? जानबूझ के जो पुलिसों ने किया उसकी इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? विड्रॉल ऑफ केसेस जो है जिसको इन्होंने मंजूर कर लिया है, लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल है कि सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन करने से जो दिक्कतें आ रही है, क्या उसको आप एड्रेस करेंगे? हमारी मांग ये है कि नीट जो है एबॉलिश होनी चाहिए, एजुकेशन शुड बी डिसेंट्रलाइज। पहला जो था कि एजुकेशन वाज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट ही रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मांग जो है मुझे सोशल मीडिया पे जो है जो विद्यार्थी है उनसे दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी ये छात्रों की बड़ी जीत तो कही जाएगी इसको, या ये छात्रों की, सभी छात्रों की जीत है। ये बड़ी जीत है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को झुका दिया और कहा दिया कि तुम ना भगवान हो ना कुछ हो, इंसान हो सिर्फ।
आपको लगता है आप ये फिर सारा जो प्रोटेस्ट और मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो छोटी छोटी आवाजें निकल रही है उसमें से, कि भैया धर्मेंद्र प्रधान से हमारा समाधान नहीं होगा। सिस्टम सुधारने की बात सरकार करेगी या नहीं करेगी, और सिस्टम सुधारना है तो मैंने जैसे कहा कि नीट को एबॉलिश करना होगा। क्या ये सरकार नीट एबॉलिश करेगी? और इन बच्चों ने अगर उसको जिद पकड़ ली कि नीट एबॉलिश करो, हमारे स्टेट में ही है, हमारे एग्जामिनेशन ले लो और वहीं पे फैसला होगा सही या गलत का, तो ये भूमिका आ सकती है आगे, ऐसा मुझे लगता है। Then like, share and subscribe to Mirror Now.